the stationary waves and the strings. So सबसे पहले experiment में we have a wooden block. Yeah. So we have this wooden block और इस wooden block में we placed two wedges on it और इस wedges के साथ हमने एक string लगाया है. String का एक end जो है वो fixed है, the other end is free on the pulley and the other end of the string is connected to the load. ठीक है? So we connected to the load so that the string is taut. ठीक है? Stretched है, fully stretched है. Now what we do, we place an audio frequency generator at the top and this audio frequency generator produces sound waves and these sound waves will produce oscillations on the string. ठीक है, स्ट्रिंग ऑक्सिलेट करेगा, उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी. तो पहला केस ये है कि आपके पास स्ट्रिंग इस फॉर्म में ऑक्सिलेट कर रहा है. So when it's oscillating in this way, so we have a node at this point and another node at this point. We already know that the length between the two wedges is capital L. So ये जो length है that will be equal to lambda over 2. So please remember node to node किसके equal होता है lambda over 2. Antinode to antinode is equal to lambda over 2 and node to antinode is lambda by 4. Okay, so यहाँ से length L which is already known to us equals to lambda over 2, so lambda is equal to 2L. So once you calculate the wavelength, so now we can find the frequency using this formula. F naught will be equals to V over lambda की जगह I will write 2L. So क्या हुआ? समझ आ गई? इस f is equals to v over lambda के फॉर्मूला में lambda की जगह I have substituted 2L. So f naught is called as the fundamental frequency or we call it first harmonics. Fundamental frequency or we call it first harmonics. ओके, सो ये हमारे पास ये प्रोड्यूस हो गया फर्स्ट हार्मोनिक्स. नाउ फॉर द सेकंड केस द वेजेस आर एट द सेम डिस्टेंस, मतलब वेजेस के दरमियान जो लेंथ थी दैट स्टेज द सेम एंड दैट वाज L. ठीक है, अब हमने फ्रीक्वेंसी जो साउंड की है, we change the frequency of the sound wave and we observe कि हमारे पास कुछ इस तरह की वेव जनरेट हो गई है. ठीक है, सो ये आ गई. ओके, सो मतलब अब आपके पास जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से ऑक्सिलेट कर रहा है. ठीक है, सो क्योंकि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करना है तो पहले यूं है तो बाद में यूं. सो अगेन वी कैन सी के वी हैव स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स. नाउ हाउ मेनी नोड्स डू वी हैव? We have three nodes. Node to node is lambda by 2. So this is lambda by 2 and this is also lambda by 2. So lambda by 2 plus lambda by 2 is equal to 1 lambda. So can I say कि L will be equal to lambda? अब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है F1 that will be equals to V over lambda की जगह I can use L. ठीक है, so F1 will be equal to V over N, where V is the speed of sound and L is the length between the two wedges. अगर मैं एक काम करता हूं, मैं इसको नीचे 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर 2 से, तो जो V over 2L है ये किसके इक्वल था? F नॉट के. सो F1 is equal to 2F नॉट. ठीक है, so F1 is called as second harmonics or first overtone. ठीक है, so this is called as second harmonics
Yes. Or we call it first overtone. ठीक है? So I hope it's सर आप clear now. ठीक है? Yeah. So this was the fundamental. मैंने basically expression को derive किया in terms of that. So जो first harmonics की frequency है वो F0 है, second harmonics की frequency उसकी double है, third harmonics की frequency क्या होगी उसकी 3 times हो जाएगी of the fundamental frequency of the first harmonic frequency. ठीक है? So ये समझ आ गया? So this is what happens when you change the frequency of the sound wave. This is how the string is going to behave. Now the third case is, okay, let's say, so the distance between the wedges is still equal. Wedges के दरमियान length is still L. Okay, अब मैं एक half cycle और ऐड हो जाती, let's say. ठीक है? So how many nodes do we have now? Node, another node, another node, and we have another node. So node to node is lambda by 2, then again lambda by 2, and then again lambda by 2. तो इन तीनों का सम करूं तो ये पूरा किसके इक्वल आता है? 3 lambda over 2. ठीक है? So that is equal to 3 lambda over 2. So can I say कि L is equal to 3 lambda over 2 और ये 2 उधर जाके L से multiply और 3 divide तो lambda किसके equal है 2L over 3. Now we have to find F2. F2 will be equals to V over lambda की जगह 2L over 3, ये 3 ऊपर जाके multiply 3V over 2L. ठीक है? सो ये V over 2L किसके इक्वल है? F नॉट के. तो कैन आई राइट के it becomes equal to 3 times of the F naught. So this is the third harmonic frequency, or we call it second overtone. Third harmonics or second overtone. So overtone is referring to the stationary or the standing waves concept. ठीक है? ये है. तो ये समझ आ गया? इज इट क्लियर? ओके. सो एक जनरल रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का. सो फ्रीक्वेंसी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन इन द वायर. वायर में जितनी ज्यादा टेंशन होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होती है. बाकी फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर. जितना वेजेस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा रखोगे लेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव उतनी कम होगी. एंड व्हाट वाज, या दैट्स इट. ठीक है? बाकी जो थिक वायर्स होती हैं they produce low frequency and the thin wires they produce high frequency. So there's a note that we need to remember. Okay, first one, frequency is directly proportional to tension in string. The greater the tension means जितना ज्यादा लोड आप उस पर अटैच कर दोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा हो जाएगी. दूसरी चीज ये है कि फ्रीक्वेंसी is inversely proportional to L. And third point is thick wires produce low frequency. Wires produce low frequency, and whereas the thin wires and they produce high frequency. So thin wires produce high frequency. If you have any question on this, please feel free to ask. ठीक है? So this marks the end of this
वो ये वाला लास्ट हमारे पास रह गया एक एक्सपेरिमेंट, वो छोटा सा है, वो भी हम कंप्लीट करते हैं, विल बी डन विद द वर्क। ये हो, ये समझ आ गया ना, वो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम क्या? ओके, इट्स ओके। अच्छा सर अच्छा, देखो हमारे पास हम ना साउंड वेव की जब फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करते हैं ना, तो वेव की जो शेप है ना वो चेंज होती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो लेट्स से इफ यू गेट दिस शेप ऑफ अ वेव, मतलब वो स्ट्रिंग जो है वो यू और यू ऑक्सीलेट कर रही है। ठीक है, सो लेट्स से इफ दिस इज योर स्ट्रिंग, तो पहले ये नीचे गई और फिर ये ऊपर गई, तो ये पहली शेप है। ठीक है, आपको इसमें से सिर्फ ये बातें याद होनी चाहिए कि नोड टू नोड है, तो इसका मतलब है ये पूरा जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू, मतलब ये lambda by 2 के इक्वल है, and lambda by 2 is equal to the length. So if we already know the length, we can find out the wavelength from here. So f naught, if we want to find the frequency in terms of the length, so what is the relation? F naught is equals to b over 2l. और इस रिलेशन से हम ये बता भी सकते हैं ना कि जब l लेंथ ज्यादा होती है तो फ्रिक्वेंसी कम है, और जब लेंथ कम होती है तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। So we get this relation. We call this frequency as the fundamental frequency or the first harmonics. ठीक है, then what we do, we change the frequency of the sound wave and we obtain a wave that looks like this. ये स्ट्रिंग का बिहेवियर नजर आएगा ना आपको, इस तरह की मूवमेंट उसकी नजर आएगी। यस, सो फिर उसके बाद पहले यूं था, तो फिर नेक्स्ट सेकंड ही वो ये हो जाएगा क्योंकि वो ऑक्सीलेट कर रहा है ना। अब हमारे पास तीन नोड्स हैं, नोड टू नोड इज स्टिल लैम्डा बाय 2 एंड दिस आल्सो इज लैम्डा बाय 2, सो दे एड अप टुगेदर एंड दे आर इक्वल टू लैम्डा। सो एफ इज बी ओवर एल, और या कहाँ पे, नहीं नोड टू नोड है ना, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। लेमडा ओवर 2 प्लस लेमडा ओवर 2 इज, डिनोमिनेटर इज सेम, नीचे 2 है और ऊपर लेमडा प्लस लेमडा 2 लेमडा, तो 2 लेमडा ओवर 2, 2 2 कट के लेमडा हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, इधर खुद से हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। सो वी वांटेड टू जस्ट सी द रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड द सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। सॉरी, लेंथ तो कांस्टेंट है ना, वेजेस को तो हम अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ साउंड की फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि जो स्ट्रिंग्स है उसका क्या बिहेवियर चल रहा है। दिस इज व्हाट वी आर जस्ट डूइंग। ठीक है, सो वी हैव सेकंड हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी, सो यू कैन सी कि सेकंड हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी इज डबल ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी। ठीक है, पहले अगर हाफ साइकिल था तो अब 2 हाफ साइकिल्स हो गए, अगर थर्ड हार्मोनिक है तो 3 हाफ साइकिल आ जाएंगे सेम लेंथ के दरमियान। ठीक है, so yeah, so this is how we derive the expression, and then we just said कि frequency is directly proportional to the tension in the string. तो जितना ज्यादा लोड आप अटैच करोगे फ्रिक्वेंसी उसकी उतनी हाई होगी, एंड फ्रिक्वेंसी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। बाकी जो थिक वायर्स हैं दे प्रोड्यूस लो फ्रिक्वेंसी साउंड, and to thin wires and they produce high frequency sound. Now let's just quickly move on to the last topic, okay, of today and of the waves and superposition, and that is stationary waves in pipes. So stationary waves in pipes. ठीक है, सो मैंने क्या बताया था, हमने 3 स्टेशनरी वेव्स के एक्सपेरिमेंट गो थ्रू किए। एक हमने स्टेशनरी वेव्स का कॉन्सेप्ट यूज किया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड एंड द वेवलेंथ ऑफ साउंड। ठीक है, और तैमूर फिर अगला वाला हमने देखा कि स्टेशनरी वेव्स एंड स्ट्रिंग्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, और लास्ट वाला जो अब हम देखने जा रहे हैं दैट इज स्टेशनरी वेव्स इन पाइप्स। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास व्हाट इज द apparatus, we have a tube। ठीक है, you अगर तो if you guys have taken chemistry फिर आपने देखा होगा कि हमारे पास एक ब्यूरेट होता है। ठीक है,
So we have this burette, ठीक है? Okay. So we fill the burette with water to a certain length. So we just filled it with water, ठीक है? And we have a loudspeaker at the top of this tube, ठीक है? And this loudspeaker is connected to, what is this device called as? Frequency generator, ठीक है? Audio frequency generator, ठीक है? So we place the, क्या कहते हैं, loudspeaker on the top of it, ठीक है? We are going to use a microphone to detect, ठीक है? So we use a microphone here to detect के sound की जो, and we connect this microphone to the CRO. Okay? So we have this CRO now. ठीक है जी? नहीं नहीं बेटा, this is the length of the tube, ठीक है, which is empty. So L is basically the length of tube, that is empty, अब हमारे पास क्या होगा बेटा? We are going to generate a sound wave, ठीक है? And what happens, we will see कि हमारे पास जो sound wave produce होता है, it looks like this, ठीक है? अब ये थोड़ी उल्टी शेप है, ये सेंटर. अब अगर आप देखो इस वेव को, इफ यू जस्ट टिल्ट इट हॉरिजॉन्टल, तो ये जो पॉइंट है ये नोड है, और ये वाला जो पॉइंट है ये एंटी नोड्स है. सो वी हैव दीज एंटी नोड्स ओवर हियर, एंड वी हैव नोड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है? जहां पे वेव्स मीट करी है वो नोड वाला पॉइंट है, जहां पे वेव्स दूर दूर है वो एंटी नोड वाला पॉइंट है. तो नोड टू एंटी नोड किसके इक्वल होता है? लेमडा बाय 4, क्वार्टर वेवलेंथ के इक्वल होता है ना. सो कैन आई से कि लेमडा बाय 4 इज इक्वल टू एल. कैन आई से कि लेमडा इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ट्यूब. गॉट इट? ठीक है, क्योंकि दिस इज नोड और ये आपके पास एंटी नोड है. नोड वो पॉइंट होते हैं जहां पे वेव्स आपस में मीट कर रही होती हैं. एंटी नोड वो वाला पॉइंट होते हैं जहां पे वेव्स एक दूसरे से डिस्टेंट होती हैं, मीट नहीं कर रही होती, सेपरेट होती हैं. सो ये नोड है एंड दिस इज एन एंटी नोड. नोड टू एंटी नोड हमारे पास इज इक्वल टू लेमडा बाय 4. So lambda will be equals to 4L. So यहाँ से अगर if I have to calculate the frequency का formula is V over lambda. तो lambda की जगह I can write V over 4L. So this is the fundamental frequency, or we call it first harmonics, ठीक है? सो ये हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक्स है, ठीक है? अब देखो बेटा, जरूरी नहीं कि वो, क्या हुआ? सॉरी, हाँ, इस केस में चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे नोड टू एंटी नोड प्रोड्यूस हो रहा है ना, एंटी नोड है इस वजह से, ठीक है? सो ये ओके. अब सेकंड केस हमारे पास क्या होगा, ठीक है? सेकंड केस में ये, इज इट क्लियर? ये बना लिया, ठीक है? बस थोड़ा सा रहेगा बेटा, ये बस मतलब. ओके, सो लेट्स जस्ट लेट मी ड्रॉ द ट्यूब अगेन.
कितना सवाब मिलेगा तो ठीक है ओके सो दिस इज जस्ट फिल्ड विद वाटर अच्छा नाउ द लेंथ ऑफ द ट्यूब इट स्टेज द सेम as before ठीक है now we are going to gradually increase the frequency of the sound wave such that you're going to see कि आपके पास इस तरह की yes okay now what happens ये देखो बेटा जहां पे वेव्स मीट करती हैं वो नोड है और जहां पे वो मीट नहीं करती दोज पॉइंट्स आर दी एंटी नोड्स तो नोड टू एंटी नोड होता है लेमडा बाय 4 और नोड टू नोड क्या होता है लेमडा बाय 2 तो टोटल इसकी दोनों को ऐड कर दूं तो दे आर इक्वल टू व्हाट दे विल बी इक्वल टू 3 लेमडा ओवर 4 ठीक है हम ऐड कर लेते हैं इसको so basically L is equal to lambda by 4 plus lambda over 2 denominator same करने हैं so 2 lambda plus lambda 3 lambda by 4 और lambda को सब्जेक्ट बनाया तो 4L over 3 is equal to lambda और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V over 4L by 3 ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई so F is equal to 3V over 4L तो V over 4L किसके इक्वल था F नॉट के तो F1 किसके इक्वल होगा this thing is equal to F naught so F1 is equal to 3 times of F naught so this is the second harmonics or this is the first overtone ठीक है first overtone ठीक है आई होप इट्स क्लियर ना आपने देखो आपने क्या चीज सिर्फ देखनी है आपने ये देखनी है कि वेव की शेप कैसी है नोड कहाँ पे है एंटी नोड कहाँ पे है नोड वहां पे होता है जहां पे वेव बीट करती है ये नोड है एंटी नोड वहां पे होता है जहां पे वेव्स दूर होती हैं नोड टू नोड लेमडा बाय 2 नोड टू एंटी नोड लेमडा बाय 4 इन दोनों को ऐड करूंगा सो देयर दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्यूब ठीक है सो यू फाइंड आउट द वेवलेंथ then you use the formula for frequency f is equals to v over lambda put the value of lambda in terms of L over there and you get the relation last क्या है इसी को ठीक है आई होप ये क्लियर है आप सबको लास्ट हमारे पास जो इसमें थर्ड केस है ये आखिरी है सो इसमें ठीक है सो अब हमारे पास ये सेम लेंथ है लेंथ हम वेरी नहीं कर रहे मतलब जहां तक ट्यूब एम्प्टी है उसकी लेंथ जो है इट स्टेज कांस्टेंट ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू सी कि वी हैव ओके अब आप ये देख रहे हो अगेन मैंने क्या बोला था मार्क द नोड्स नोड 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 एंड दिस पॉइंट इज द एंटी नोड ठीक है node to antinode is lambda over 4 node to node is lambda over 2 so इन तीनों को ऐड कर दूं L is equal to lambda by 4 plus lambda by 2 plus lambda by 2 lambda by 2 plus lambda by 2 क्या होता है lambda डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं 4 lambda plus lambda किसके इक्वल होता है 5 lambda over 4 so ये आ जाएगा 4L over 5 equals to lambda and frequency का फॉर्मूला V over lambda की जगह I am going to put 4L over 5
So that will be F2 is equals to 5V over 4L, where V over 4L is equal to F naught. So F2 is 5 times of F naught. So ये हमारे पास क्या आ गया? Third harmonics और second overtone. ठीक है? So this is third harmonics or we call it second overtone. ठीक है? ओके, सो आई होप ये क्लियर अब सबको। आपने सिर्फ जितने भी वेव के ये क्वेश्चन अगर आपने नोट्स मार्क करने हैं, नोड इज अ पॉइंट वेयर द वेव्स इंटरसेक्ट और दे मीट। जैसे कि ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। एंटी नोड क्या होता है? जहां पे वेव्स डिस्टेंट होती हैं एक दूसरे से। जैसे ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है। पर अगर अब नोड टू नोड इज lambda by 2, node to antinode is lambda by 4, and if this is the total length, so this total length will be equals to lambda by 4 plus lambda by 2 plus lambda by 2, and we get the length as 5 lambda over 4, make lambda as the subject, you calculate its wavelength. Then once you have the wavelength, you can find out its frequency using the formula F is equals to V over lambda. ठीक है? So this marks the end of waves and superposition. If you have any